اکتوبر 1995 میں فوجی افسران کی ایک سازش بے نقاب ہوئی، جس کے مطابق چند فوجی افسروں نے فوج کی اعلیٰ قیادت، صدر، وزیر اعظم اور کچھ وزراء بشمول آصف علی زرداری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس سازش آپریشن خلافت میں فوج کے اعلیٰ افسران بھی ملوث تھے۔ 26 ستمبر 1995 کو فاٹا سے آنے والے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کی گاڑی کو ایک پولیس چیک پوسٹ پر روکا گیا اور اس کی تلاشی کے نتیجے میں کلاشنکوف اور راکٹ لانچر برآمد ہوئے۔ بریگیڈیئر نے روب جمانے کی کوشش کی اور GHQ سے رابطہ کیا، لیکن بقول کوثر نیازی لائن کٹ چکی تھی۔ تحقیقات کے مطابق 36 فوجی افسران اور 20 سویلین اس منصوبے کا حصہ تھے، اور یہ سب افراد ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے رکن مفتی صوفی اقبال کے مرید تھے۔ صوفی صاحب اکثر 10 کور ہیڈ کوارٹرز میں درس دیا کرتے تھے۔ ظہیر الاسلام عباسی کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے تھا، اور وہ افغانستان کے علاوہ بھارت میں پاکستانی خفیہ اداروں کی جانب سے اپنی خدمات پیش کر چکے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ کور کمانڈروں کی کانفرنس کے دوران GHQ پر حملہ کر کے کانفرنس کے شرکاء کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ملک میں شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کارروائی کے بعد قوم سے خطاب والی تقریر بھی تیار کی جا چکی تھی، جس کے مطابق ملک کو ایک پاکستانی سنی مملکت قرار دیا جانا تھا، جہاں مکمل اسلامی نظام نافذ کیا جانا تھا۔ اس تقریر میں موسیقی، فلموں، اسقاط حمل کی ادویات، سودی کاروبار اور عورتوں کی تصاویر پر پابندی عائد کرنے کا حکم بھی موجود تھا۔ اس منصوبے میں حرکت الجہاد الاسلامی کا سربراہ قاری سیف اللہ اختر بھی شامل تھا، جس نے مستنصر باللہ کی گاڑی سے برآمد ہونے والا اسلحہ فاٹا سے خریدا تھا اور جس کی جماعت کے ارکان نے کانفرنس پر حملہ کرنا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنرل مشرف حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے کیے گئے اقدامات میں ایک ظہیر الاسلام کو رہا کرنا بھی تھا۔ قاری سیف اللہ اختر کو مقتدر حلقوں نے وعدہ معاف گواہ کے طور پر استعمال کیا، اور بعد ازاں وہ افغانستان میں ملا عمر کا مشیر رہا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سیف اللہ اختر سعودی عرب فرار ہوا، اور سن 2004 میں دبئی حکومت نے مشتبہ کارروائیوں کے ضمن میں اسے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا۔ مشرف اور بے نظیر پر قاتلانہ حملوں میں اس کا گروہ ملوث پایا گیا۔ 1995 میں واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں تعینات ملٹری اتاشی بریگیڈیئر خالد مقبول صاحب جعلی نوٹوں کا کاروبار کرتے پکڑے گئے۔ ان کے تیار کردہ جعلی نوٹ اس قدر اعلیٰ نوعیت کے تھے کہ امریکی محکمہ خزانہ کو $100 کے نوٹ کا ڈیزائن تبدیل کرنا پڑا۔ خالد مقبول صاحب کو پاکستان بھیج دیا گیا، اور مشرف دور میں وہ پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس سے قبل 1994 میں دیر سے تعلق رکھنے والے صوفی محمد نامی ایک مولوی نے سوات اور مالاکنڈ کے علاقوں میں شریعت نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے، ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا، اور ٹریفک روک لی گئی۔ ٹریفک کو بائیں طرفہ سے دائیں طرفہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پشاور سے بھیجے گئے جج حضرات کو محاصرے میں لے لیا گیا، اور فسادات کے دوران صوبائی اسمبلی کے رکن بدیع الزمان خان کو قتل کر دیا گیا۔ تحقیقات کے مطابق سوات میں شریعت کے نفاذ سے دراصل والی سوات کے عہد میں کیے جانے والے فوری انصاف کا قیام مقصود تھا۔ والی سوات کے دور حکومت میں سوات کی آبادی چند دیہات پر مشتمل تھی، اور ان حالات میں حکمران کے لیے جرم کی کوئی سی سزا تجویز کرنا سہل تھا۔ 1970 میں بند یونٹ کے اختتام پر سوات میں جدید قانون کی بنیاد پر عدالتی نظام شروع ہوا، تو وہ بزرگان کرام کو سست رفتاری کے باعث پسند نہیں آیا۔ ایسے میں شریعت کے کندھے پر فوری انصاف کی بندوق رکھ کر چلائی گئی۔ صوفی محمد نے 1989 میں دیر کے علاقے میدان میں تحریک نفاذ شریعت محمدی نامی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کے بیشتر ارکان مختلف مساجد کے ائمہ اور مدارس کے نگہبان تھے۔ اس جماعت کے مختلف ارکان نے صوبائی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ صوفی محمد نے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر دیر کے حلقے سے صوبائی انتخاب میں شرکت کی، لیکن ناکام ٹھہرے۔ سوات پر حملہ کرنے والوں میں اکثریت کا تعلق کوہستان، دیر اور باجوڑ ایجنسی سے تھا۔ عوام کے جذبات کو بھڑکانے میں جماعت اسلامی نے بھرپور کردار ادا کیا، اور سوات کے واقعے سے قبل جماعت کی جانب سے بازاروں میں پمفلٹ تقسیم کیے جاتے رہے، جن میں شریعت اور اسلامی نظام کے قیام کی خاطر قربانی دینے کا پیغام موجود ہوتا تھا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فوج کو طلب کرنا پڑا۔ مختصر تنازع کے بعد امن و امان بحال ہوا، اور صوفی محمد کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کے مطالبات پر بتدریج عمل کیا جائے گا۔ اس دور میں عدلیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا رواج عروج پر پہنچ گیا۔ ایک جج صاحب کو صرف اس جرم میں برطرف کیا گیا کہ انہوں نے نواز شریف کے والد کو ضمانت پر رہا کیا تھا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ مہاجر قومی تحریک اور مسلم لیگ نواز کے کئی ارکان اسمبلیوں کے رکن ہونے کے باوجود جیل کاٹتے رہے۔ جون 1994 میں
जस्टिस नसीम हसन शाह की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सीनियर मोस्ट जज जस्टिस जान की जगह सज्जाद अली शाह साहब को मुंसिफ आला का ओहदा सौंप दिया गया। पंजाब और सिंध के चीफ जस्टिस साहिबान को बरतरफ करके अपनी जमात से हमदर्दी रखने वाले जजों को नवाजा गया। इसके बाद सिंध हाई कोर्ट में 9 और लाहौर हाई कोर्ट में 20 नए जज भर्ती किए गए, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। लाहौर हाई कोर्ट के इन जजों में से एक साहब ने जिंदगी में पहली दफा आला अदालत की इमारत देखी थी, जबकि दीगर अफराद में से 5 ने बहैसियत वकील कभी हाई कोर्ट में मुकदमा पेश नहीं किया था। बलोचिस्तान के अलावा तमाम सूबाई आला अदालतों में कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। इस बंदरबाट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और यह केस पाकिस्तान की कानूनी तारीख में जजेस केस के नाम से जाना जाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फैसला किया कि आइंदा जजों की तकर्रुरी के लिए आला अदलिया से मशवरा करना जरूरी समझा जाएगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक काम कर सकते हैं और इनके मशवरे पर नए जज तैनात नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के मौका पर सीनियर मोस्ट जज को तरजीह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट में तैनात नहीं किया जाएगा और हुकूमत किसी जायज वजह के बगैर किसी आला अदालत के जज का तबादला नहीं कर सकती। इस तारीख साज मुकदमे की समाअत के दौरान और फैसले के बाद जजों को तंग करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरकारी गाड़ी अगवा कर ली गई, इनकी बेटी और दामाद को हरासा किया गया। जस्टिस नासिर असलम जाहिद को शरीयत अदालत भेज दिया गया। जस्टिस फजल इलाही के बेटे को चित्राल में तैनात कर दिया गया। इन तमाम हरकत के बावजूद इस फैसले पर अमल करते हुए जून में सूबाई और वफाकी अदालत से 24 जजों को बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि इनकी तकर्रुरी के लिए हुकूमत ने अदालत उज़्मा से मशवरा नहीं किया था। जून ही में एक बरतानवी अखबार ने यह इंकशाफ किया कि मोहतरमा और उनके शोहर ने 25 लाख पाउंड के एवज बरतानवी शहर सरे में एक महल नुमा मकान खरीदा है। वजीर आजम के तर्जुमान ने इस खबर की तरदीद की, लेकिन बरतानवी अखबार अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और यह इंकशाफ भी किया कि जरदारी साहब ने लंदन के पौश इलाके में 2 फ्लैट खरीदे, जिनकी अदायगी बैरून मुल्क वाक़े बैंक अकाउंट से की गई। 14 सितंबर 1996 को बैंक दौलत पाकिस्तान ने रुपए की कीमत में कमी का ऐलान किया। IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़रई आमदनी पर टैक्स नाफिज किया जाए, फौज पर खर्च कम किया जाए, बरामदात का टैरिफ कम किया जाए, जनरल सेल्स टैक्स का नफाज किया जाए और मुख्तलिफ सनतों को हासिल टैक्स छूट को खत्म किया जाए। 20 सितंबर 1996 की रात वजीर आजम के भाई मुर्तजा भुट्टो को इनके घर के सामने गोलियों का निशाना बनाया गया। 17 सितंबर को मुर्तजा भुट्टो के करीबी साथी अली सोनारा को पुलिस ने सीमा और इनायत हुसैन पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के ओहदेदारान के घर से गिरफ्तार किया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा मुर्तजा ने अली की तलाश में पहले CIA के गार्डन थाने का रुख किया, लेकिन वहां से मतलूबा मालूमात हासिल ना हुई। मुर्तजा और उनके साथ मौजूद गार्ड्स मायूसी की हालत में SSP साउथ थाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस एहलकार उन्हें अली सोनारा की गिरफ्तारी के मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब मुहैया ना कर सके। अलबत्ता एक पुलिस एहलकार ने मुर्तजा पर पिस्तौल तानने की कोशिश की, जिसके बायस पुलिस और मुर्तजा के गार्ड्स के दरमियान तू में शुरू हो गई। इस चपकलश के दौरान मुर्तजा ने एक पुलिस सुपरिटेंडेंट को गिरेबान से पकड़ा और अली सोनारा के मुतालिक मालूमात फराहम करने का मुतालबा किया। कुछ देर गर्मा गर्मी के बाद मुर्तजा का काफिला नेपियर रोड थाने की जानिब रवा हुआ, लेकिन वहां भी इन्हें मतलूबा मालूमात ना मिल सकी। 20 सितंबर की सुबह 70 क्लिफ्टन, जो कि मुर्तजा भुट्टो की रिहाइशगाह थी, के इर्द गिर्द 4 बख्तर बंद गाड़ियां तैनात की जा चुकी थीं। इस दौरान वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने असम्बली में तकरीर के दौरान अली सोनारा की गिरफ्तारी के बायस दहशतगर्दी के वाकयात की पेशगोई की। 20 सितंबर की दोपहर मुर्तजा भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के वजीर आला अब्दुल्ला शाह की हिदायत पर पुलिस के आला अरकान बाजिद दुर्रानी और शुएब सडल इनकी जान के दरपे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुर्तजा अपने काफिले के हमरा सरजानी टाउन में अपनी जमात के जलसे से खिताब करने के लिए रवाना हुए। जलसे से वापसी पर मुर्तजा की गाड़ी को क्लिफ्टन के इलाके में रोका गया और पुलिस की फायरिंग के बायस 6 गार्ड्स इंतकाल कर गए, जबकि मुर्तजा को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल ले जाया गया। जाए वकुआ पर हक नवाज सयाल और शाहिद हयात नामी पुलिस अफसरान मौजूद थे। फायरिंग के दौरान स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं और वाकये के 15 मिनट बाद जाए वकुआ को पानी से धोया जा चुका था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मीर मुर्तजा अपने कदमों पर चलकर पुलिस की गाड़ी में सवार हुए, जो उन्हें अस्पताल ले गई। 2 तलवार के करीब इस गाड़ी को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मिड ईस्ट अस्पताल में मुर्तजा को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल किया गया, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अदम दस्तियाबी के बायस इन्हें मतलूबा निगहदाश्त ना मिल सकी और आधी रात से 10 मिनट कबल इनकी वफात का ऐलान कर दिया गया। हक नवाज सयाल और शाहिद हयात इस वाक़े में जख्मी हुए, लेकिन मेडिकल बोर्ड के मुताबिक हक नवाज अपनी ही गोली से जख्मी हुआ। बोर्ड के इस फैसले के अगले ही रोज हक नवाज को इसके घर में 2 मुश्तबा अफराद ने कत्ल कर दिया।
इस वाक़े के 3 रोज बाद मुल्तान में फजर के वक्त जमात पर फायरिंग से 23 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें सिपा साहबा के एक मदरसे के 10 बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले अगस्त के महीने में बहावलपुर के एक शिया आलिम और सरगोधा के कमिश्नर को मौत के घाट उतारा गया था। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सदर लगारी ने बाज़ाब्ता तशवीश का इजहार किया। 26 सितंबर को उन्होंने अपोजिशन सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की और तमाम जमातों को मुफाहमत के साथ सियासत करने का मशवरा दिया। सदर मुमलिकत ने ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला को मुतल्ला किया कि वो करप्शन की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म बेनज़ीर साहिबा ने लगारी नवाज मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि मुक़्तदिर कुव्वतें इनकी हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके वालिद और भाइयों की मौत की जिम्मेदार कुव्वतें इनको भी जिंदा नहीं देखना चाहती। इस दौरान वो बरतानिया और अमरीका के दौरे पर रवाना हो गई। 20 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने सदर के मुकर्रर करदा प्रोसिक्यूटर के आगे पेश होने का इंदिया दिया और इसी रोज वज़ीर मुमलिकत बराए कानून ने 15वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा असम्बली में पेश किया, जिसके मुताबिक सरकारी ओहदे पर फाइज कोई भी शख्स करप्शन में मुलव्विस होने की सूरत में सजा का हकदार होगा। 27 अक्टूबर के रोज जमात इस्लामी के अरकान ने कौमी असम्बली के बाहर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें यह फैसला किया गया कि एहतजाज के तौर पर असम्बलियों से इस्तीफा दिया जाएगा और इसके बाद मुल्क गिर हड़ताल मुनक्किद की जाएगी। 5 नवंबर को सदर लगारी ने अपनी ही जमात की हुकूमत बरतरफ कर दी और ताज़ा इंतखाबात का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इस दौर में कौमी असम्बली ने सिर्फ एक काबिल जिक्र कानून पास किया, जबकि 335 सदारती अहकामात जारी किए। गुज़िश्ता हुकूमत के तरक्याती कामों जैसे मोटरवे के मंसूबे की तकमील में रोड़े अटकाए गए। अपने सियासी हरीफों को गैर पार्लिमानी अलकाबात से नवाजने का काम मोहतरमा ने बखूबी अंजाम दिया और कभी महाजिरों को बुज़दिल चूहे तो कभी अपोजिशन जमातों को कमीने कहा। सदर फारूक लगारी से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया, जिसके तहत मखसूस इलाकों में पुलिस के ज़ेरे निगरानी दिए गए बयानात को अदालत में काबिल कबूल करार दिया गया। पुलिस के ज़ेरे निगरानी बयान कैसे लिए और दिए जाते हैं, इससे तो आप वाकिफ होंगे। इक्तिसादी पॉलिसी के मैदान में मोहतरमा के मुशीरान जाती अनाओं के भेंट चढ़ते रहे और मुल्क दिवालिये की सतह पर पहुंच गया। शुमाली पंजाब के इजला, गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारोवाल, शक्करगढ़, गुजरात में अमन और अमान की सूरत हाल एक मौके पर इस हद तक बिगड़ गई कि कई इलाकों में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नाकाम साबित हुई और बहुत से देहात नो गो एरिया बन गए। मेहरान बैंक से 1990 में खुफिया इदारे मुस्तफीद हुए तो 1994 में इसी मेहरान बैंक की माली इमदाद के तवस्सुत से आफ्ताब शेरपाओ, सलीम सैफुल्लाह और जरदारी साहब ने सरहद असम्बली में जोड़ तोड़ की सियासत की। अदालत उज़्मा के फैसले के बरखिलाफ पंजाब में बल्दियाती निज़ाम को बहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल के मामलात में आसिफ अली जरदारी और मुल्क में चावल की तकसीम में बीबी की जानिब से बेजा मुदाखलत के बाइस मुल्की खजाने को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से वजीर दाखिला के नाम जारी करदा बेशतर चेक जाली थे और मुस्तहिक अफराद के नाम पर हुकूमती जमात के अरकान ऐश करते रहे। मुल्क में मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई, लेकिन हुकूमती ओहदेदारों के अलावा इसको इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद रखी गई।